Hello, this is Vikram Atra again. And last week I recorded a video on IDBI Bank. If you haven't watched that video, then I suggest you go ahead and watch it first. And this video, we are going to talk about the positions that I have taken this week, positions that have worked, a few that have not worked. We will cover all of them. कि कैसा मूव आया कौन से स्टॉक्स में और कहाँ ब्रेकआउट्स फेल हुए. सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बार दैट वी वांट टू फोकस ऑन इज के मार्केट एनवायरनमेंट हैज गॉटन लॉट बेटर आफ्टर in fact couple of months. If you see this indicator here which shows the 52-week net new high, this is the mid cap, by the way, this is the mid small cap 400 index जो हमारा यूनिवर्स है, जो स्टॉक्स हम जनरली ट्रेड करते हैं मिड और स्मॉल कैप के. सो ये इंडिकेटर हैज बीन क्रिएटेड बाय simply Nitin. If I'm sure a lot of you guys must be following him on X. He is been very generous to provide us with a lot of good indicators, and this is one of them जिसमें ये शो करता है कि whenever we have 3 consecutive days, so on the third day when we have good breadth, that is the net new 52-week high जो है they are more than the 52-week lows, then this area starts to show a green shadow if you see here. So अगर आप देखेंगे इसमें very quickly कि last green shadowed area was here 4th November, and post 4th November we did not get a good breath until let's say this 26th December. It's post 26th December that we have started seeing some signs of recovery, and last 3 days we had back to back 3 green bars again, and with good sized candles above the 10 and the 20-day moving average. तो फर्स्ट टाइम हमें काफी टाइम बाद लग रहा है कि ब्रेथ जो है इम्प्रूव हो रही है मार्केट की. स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जो है दे आर विलिंग टू गो अप. ये प्री बजट रैली के भी साइंस हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेट्स सी. और ये ऊपर दिखाता है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है बिलो द 50 डीएमए वो अभी भी 50% से कम है. दिस ब्लैक लाइन इज 50% लाइन, तो अभी भी उससे कम है. बट इफ यू सी कि 2 महीने बाद दिस लाइन हैज स्टार्टेड अप्रोचिंग, यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स which are getting past their 50 DMAs is on an uptrend now. It's finally started to increase. So good signs are ये. So this is the time that you want to swing trade and hold your positions. More importantly, जल्दी बुक नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे. रिस्क मैनेज करना है, बट वी विल ट्राई टू राइड ट्रेंड्स जहाँ पे हमें दिखते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ 20-30% मूव्स or even 40-50% moves, depending upon kitna how fast or quickly the stock moves. So quickly coming to the trades that I have taken this week. All right, so these are the trades of the week. सबसे पहले I took this trade on precision wires. If you see, it had a very nice up move. ये एक पहले इसका बेस था यहाँ पर लगभग. This was the base that it had formed, and then ये first leg of the rally आई थी. ये rally आने के बाद it corrected all the way down. अब इसमें मैंने 50 MA ड्रॉ नहीं कर रखी है, बट अगर 50 MA यहाँ शो करूंगा तो somewhere it would have undercut the 50 MA and then base बनाया था. ये सारी ड्रॉइंग अगर रिमूव करें तो यहाँ पर कहीं पर there was this base that was getting formed. You can see this horizontal line, and इस टाइटनेस के बाद, so you see this 4-5 days of tightness के बाद this inside bar was created here on 26th December, and 29 December is when early morning we saw some good volumes and I entered this stock. और इसने बहुत अच्छा मूव दिया भी फर्स्ट डे पर. वी वर अप रफली अराउंड 8-9% ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ एक टाइम पर, बट थोड़ा सा क्लोजिंग भी इतनी बुरी नहीं थी. आई वुड से इट वाज अराउंड 258. वी एंटर्ड अराउंड 242 समथिंग, but as soon as this happened, when she get a 8-10% moved, I had moved my stop loss to cost, and very next day it gave up all the gains. There was big selling pressure, so unfortunately we were forced out of the trade. But ठीक है, we did not lose any money here because we had trailed the stop loss to cost after getting a 8-10% move from our entry price.
बट अभी हमारे आउट ऑफ वो नहीं गया है, वी आर स्टिल कीपिंग इट ऑन रेडार। अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे पहले ही बात करा था, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बेस, अगर हम बोले कि एक नया बेस फॉर्म कर रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई है, शायद ये राइट हैंड साइड अब दोबारा बनाना शुरू करेगा। इनफैक्ट इफ यू सी कि कल ये जो लास्ट 2 days का एक्शन है, इसमें ये बार के बाद देयर इज एन इनसाइड बार here again, so in fact it can set up, it can be considered for an entry again tomorrow अगर आपको अर्ली मॉर्निंग वॉल्यूम्स, इनफैक्ट मंडे आई एम टॉकिंग, और मंडे को दोबारा इट कैन बी ऑन योर रेडर, क्योंकि इसका सेटअप अभी भी बहुत वैलिड है। so this stock should continue to be in your watch list if you are a swing trader. next is IFL cap. IFL cap भी अगेन इफ यू सी के ये मेरी एंट्री जो थी थोड़ी इसको हम चीट एंट्री बोलेंगे, क्योंकि ये इसका एक बड़ा सा बेस फॉर्म हुआ है सिंस 5th जून, एंड इसका अपमूव भी पहले वाला काफी अच्छा था 7th अप्रैल से यहाँ पर। इट हैड ऑलमोस्ट 100% मूव, दिस इज 95% मूव, 100% ही होगा इनफैक्ट इफ आई टेक इट फ्रॉम द बॉटम, तो 100% प्लस मूव था। और उसके बाद से इसने पूरा ये बेस बनाया है, ये बेस आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी है, अगर आईडीबीआई की भी हमने बात करी थी, तो ये पूरा बेस बनाया है। यहाँ पर भी इसने अटेम्प्ट करा, तो ये एक पिवट लाइन बन गई थी इस अराउंड 370 के रीजन के आसपास, और ये अब पिवट लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट हमारी एंट्री, मेरे को ये एंट्री मैंने इस स्टॉक को रेडार पे आना शुरू किया था जब ये इस टाइटनेस से जब ये बाहर निकला यहाँ पर। ये भी पॉसिबल एंट्री हो सकती थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ साइंस ऑफ बाइंग दिखे, विच आई गॉट हियर, कि यहाँ पर कि हाँ फाइनली मे बी इस बेस से अब हम बाहर निकल रहे हैं, वी गॉट वॉल्यूम्स आल्सो एंड द स्टॉक केम आउट ऑफ दिस अराउंड व्हाट, अराउंड 24 days का कंसोलिडेशन, एंड देन इसने यहाँ पर अटेम्प्ट करा कि टू ब्रेक आउट अगेन। बट दिस वाज द डे कि मैंने जब मॉर्निंग में आई सॉ इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स वी गॉट गुड वॉल्यूम्स, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एंटरिंग। सो दिस ट्रेड इज वेरी मच अलाइव। इसको मैंने बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटे साइज से एंटर किया था, क्योंकि ये अभी एक चीट एंट्री है और ये हमारे को और भी अभी एंट्री अपॉर्चुनिटी देगी। सो दिस आई एंटर्ड विद रफली 8% ऑफ माय कैपिटल, एंड अब ये दोबारा टाइट करने होने की कोशिश करेगा। इसमें आइडियल सिनारियो होगा कि ये अब पिवट लाइन के पास है, तो पिवट लाइन के पास आने पर ना, जब भी जनरली वॉलेटिलिटी थोड़ा स्टॉक की बढ़ जाती है, इट विल ट्राई टू मे बी बेस आउट। तो अगर ये अगेन यहाँ पर लेट्स से टाइट होता है नेक्स्ट 2-3 days, सॉरी, अगर यहाँ नेक्स्ट 2-3 days इट टाइटन्स अप अगेन, तो इसमें ये हमको री एंट्री अपॉर्चुनिटी दे सकता है, री एंट्री एडिशन की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आई ऑलरेडी हैव इट, बट यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री लेना भी पॉसिबल है, but do not take it straight away, wait for some sort of a setup to happen. I would prefer कि ये थोड़ा एक 10 MA की तरफ, ये जो ग्रीन लाइन है 10 MA की, EMA की, उसको थोड़ा वहां पर थोड़ा फ्लश आउट करे लॉन्ग्स को एक बार, क्योंकि 4-5 days का अपमूव है ऑलरेडी, और उसके बाद टाइटन अप हो दोबारा, तो इट कैन प्रोवाइड अनदर लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, एंट्री अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक, ये मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ था, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने पहले ही मार्क करा था, आपको मार्क करके बताया था कि इस दिन किसी भी दिन अगर ये आपको दिखे कि ये 103 लेवल क्रॉस कर रहा है, मॉर्निंग वॉल्यूम्स डिसेंट हैं, तो आप इसमें सर्टेनली एंटर कीजिए। ये इसमें बहुत अच्छा एक्शन था, वी हैड 4-5 days ऑफ टाइटनेस विद इन दिस 22nd बार, and beautiful up move today. It has become risk free and it's now giving almost 10-11% from our entry price. So for detailed video on this, I have covered this stock in detail. You can go back and see the stock. I'll leave the description link, the link of that video in the description. You can just go ahead and watch that. अवंती फीड्स मैंने अपने एक्स की टाइमलाइन पर पहले भी पोस्ट किया था, इसने काफी टाइम लगाया है, इसने इट हैड अ बेस हियर, ये बड़ा सा बेस था, इसको अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, इसको आप एक टेक्निकल, अगर ओल्ड स्कूल टेक्निकल टर्म्स में देखिए तो ये प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट है, पैटर्न है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये राइट शोल्डर, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था। अब ब्रेकआउट बनाने के बाद इसने पूरा एक बड़ा बेस बनाया है, इसको हम बेस और बेस पैटर्न बोलते हैं। दिस इज द लार्जर बेस एंड देन देयर इज अ स्मॉलर बेस। मेरी फर्स्ट एंट्री जो थी वो यहाँ पर थी, लगभग
जब इसने फर्स्ट टाइम इसको ब्रेकआउट देना शुरू करा था, एंड उसके बाद मुझे था कि होपफुली शायद यहाँ से ही भाग जाएगा, लेकिन इट हैज बेस्ड आउट अगेन। बट इसने कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट करा और बहुत अच्छा एक दोबारा बेस बनाया है। एंड इन दैट बेस इफ यू सी, यहाँ पर ये किसने 10-20 के पास 4-5 डेज की टाइटनेस बनाई, ये इनसाइड बार बनाया। ये इनसाइड बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्योंकि बिल्कुल वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, एंड दैट मीन्स कि सप्लाई एब्जॉर्ब हो गया है एंड द स्टॉक में बी रेडी फॉर एन अपमूव। बट वो इनसाइड बार को आप प्लीज ऐसे मत लीजिएगा कि कहीं पर भी इनसाइड बार बना तो यू कैन एंटर। You have to look at it in context of the overall setup. So this was again an entry point, and first day पर इसने हमको एक 4-5% का move दिया था. Entry was somewhere here on the second position, and it is still up 4-5% on the entry point, and now the stop loss can be easily moved somewhere here for the entire position. So we have two positions, and the stop loss can be moved to this point. Next, dredging corp. ड्रेजिंग कॉर्प भी उसका अपमूव बहुत अच्छा था। वॉल्यूम्स थे, इसको हम बहुत क्लीन अपमूव बोलते हैं। दिस वाज अ 80% मूव इन 21 डेज। ये बड़े बड़े जो बार्स दिख रहे हैं आपको विद पर्पल डॉट्स एंड गुड वॉल्यूम्स, दे आर ऑफ यू नो, दे सजेस्ट कि इसमें बहुत इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का। इवन हियर इफ यू सी कि इस बेस से निकल के जब इसने ये वाला मूव भी दिया, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स बहुत बड़ी दी। दिस इज द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड इसकी बहुत अच्छी एंट्री शायद इस दिन थी जो मैंने मिस करी थी। दिस वुड हैव बीन अ बेस्ट डे टू एंटर। एंड उसके बाद भी इसने ऑल्दो एक ही दिन का मूव दिया और उसके बाद एक और बेस बना रहा है, एंड दिस वाज मोर ऑफ अ बेस ऑन बेस पैटर्न। तो मैं इस स्टॉक को इस वीक जब ट्रैक कर रहा था, तो ये जो 4-5 डेज की टाइटनेस, एक्सेप्ट दिस बार, ये 4-5 डेज की जो टाइटनेस है, इसके ऊपर मैंने इसके बाद मैं इसमें एंटर करना चाहता था। तो दिस इज द डे जब इसने अर्ली मॉर्निंग थोड़ी वॉल्यूम शो करेंगे। आपको दिखेगा कि मॉर्निंग थोड़ी सी वॉल्यूम्स पॉप अप हुई थी यहाँ पे, ये ब्लैक बार थोड़ा सा बाकियों से बड़ा है, बट उसके बाद सेकेंडरी वॉल्यूम्स आई नहीं एंड द स्टॉक कोलैप्स्ड। एंड सेम डे पर ही विद अ वेरी वेरी माइनर स्टॉप लॉस, आई थिंक इट वाज लेस देन 0.6-0.7%, दैट आई exited this. Not much of a hit. I think it was less than 0.1-0.2% of the portfolio. So overall, this is one failed trade that happened. Setup में कोई दिक्कत नहीं थी, just that maybe it's not ready yet. और ये होंगे, ये situations आती हैं, even in the best environments and the best looking stocks. Uh, but all you have to do is manage risk and make sure your downside is curved. लास्ट स्टॉक एचडीएफसी बैंक। ये बड़ा स्टॉक है, आपको सबको पता है। दिस इज बेहमत, और हमको इसे ट्रेड जनरली मैं नहीं करता, लेकिन अगर मैं करता हूँ इतने बड़े स्टॉक को तो आई विल रादर डू इट इन द एफएनओ सेगमेंट, क्योंकि आई डोंट वांट टू एलोकेट टू मच कैपिटल टू इट। एफएनओ में लेवरेज का यूज होता है, और लेवरेज लेना इसलिए मुझे एफएनओ में बड़े स्टॉक्स में ठीक लगता है क्योंकि मेरा कैपिटल साइज उतना है कि मैं इसके अंदर अगर एक लॉट दो लॉट कितना भी खरीदूं, कि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटे होंगे। जैसे आज मैंने इसके अंदर एंट्री ली है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ 1% का है, आज के लो के नीचे। इसमें भी आप देखेंगे तो देयर इज अ बिग बेस, देयर इज दिस पिवट लाइन हियर, एंड विद इन दिस पिवट लाइन इसकी ये जो बेस बना था, इट हैड अ लेफ्ट हैंड साइड टू इट एंड अ राइट हैंड साइड टू इट। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप आईडीबीआई वाली वीडियो देखेंगे तो विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। And the entry was triggered somewhere above this point. So again, keeping this one on radar. Already position है, let's see how it works the next day. Stop loss बहुत tight है below today's low, इसने last 5 days की consolidation से आज breakout दिया है। All right, that's about it in this video. थोड़ा लंबा हो गया, but I had to cover a few stocks. If you like this video, please subscribe to the channel, share it with your friends. I will also leave the link to my X profile. वहाँ पे I keep posting my trades in real time, so you can follow there as well. Thank you so much, guys.